All right. Hi, everyone. Good morning, Aram. Good morning, Rupesh. Good morning, Anshul. Give me a minute. I'm just prepping the notes. I hope you guys got a chance to go through the remaining lecture. And notes बनाया है आप लोगों ने. Give me a moment, just quickly understand. All right. Sorry for the delay, guys. ठीक है. So आप क्या डाउट कह रहे हो? Worried? अच्छा नहीं, अंशुल ने लिखा है. Will you be teaching us nuclear chemistry? Because in timetable ADCH sir is given. अच्छा ऐसा है क्या? तो अगर ADCH सर पढ़ा देंगे तो वो अच्छी बात है. मतलब वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ में रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया था, but mostly that is again something which is you can understand primarily what I should say, बुकलेट के नोट्स ही हैं उसमें जो कि इम्पोर्टेंट है, उसी में से इंफॉर्मेशन समझनी है. ठीक है, अगर ADCH सर करा देंगे तो बहुत अच्छी बात है. उन्होंने कराना शुरू कर दिया है क्या? लाइक डज ही हैव अ लेक्चर टुडे? अच्छा थर्सडे को है. थर्सडे और अपना फिर फ्राइडे को होगा.
हाँ ठीक है, फिर अगर ADCH सर करा देंगे तो ऑल इन गुड। आप लोग फिर डाउट्स वगैरह डिस्कस कर लेना मेरे साथ में। All right, chalo. Let's begin today's discussion with the second part of surface chemistry, which was about colloidal solutions. Now, why surface chemistry chapter के अंदर ये part बताया जाता है, right? This is something which is not evident in the first go. It is not clear in the first look of it. ठीक है, जैसे adsorption surface chemistry में क्यों पढ़ाया जाता है वो काफी clearly समझ में आ जाता है. Like it is because of the surface phenomena and surface sites जहाँ पर molecules adsorb होते हैं, attract होते हैं. यहाँ पर थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा. तो bear with me and understand what we mean by colloids. Right. So based on the size of the solute particles, we have these three categories: suspension, colloid, and true solution. Right. कैसा रहता है? True solutions are very small particles in size, individual atoms, ions, or molecules, which get homogeneously dispersed throughout the solution. And they are small in size in terms of they don't have a surface as such. Okay. Suspension and colloids are relatively larger size particles with their ranges of size, broadly kept in this manner. Now, colloids and suspensions both have larger particles, but what happens with suspension is that their sizes, their particles are large enough to be influenced by the force of gravity, and they settle down eventually. Whereas suspension particles, they don't settle down. Right. So this is the, you can say, basic definition difference between suspension, colloid, and true solution. Of course, there are certain other differences also which come in terms of their properties. Right. So example being suspension का sand in water, colloids का milk या फिर sulfur का colloidal sol in water, and true solution is say something like NaCl in water या sugar in water. Right. What happens here is that these are some of the important properties based on the differences between them. ठीक है, ये आप एक बार क्विकली देख लो. एनी डाउट्स इसमें तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं. लास्ट वाला नोटिस कर लेना. सस्पेंशंस एंड कोलॉइड्स को हेट्रोजीनियस कंसीडर करा जाता है. होमोजीनियस सॉल्यूशंस आर द ट्रू सॉल्यूशंस. ठीक है. नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ, because of the heterogeneous nature of colloid, we say that the colloid consists of two phases, the solute and solvent. But instead of saying solute and solvent, we are a bit more fancy in terms of calling the solute as DP, dispersion medium, and the solute as DP, dispersed phase, and solvent as dispersion medium, DM. ठीक है. So for example, gold sol है, right? तो उसमें gold will be your DP and water will be your DM. ठीक है. Sol is a word which is commonly used for colloids, तो ये आपके सामने आता रहेगा. तो colloidal solution क्या होता है, how it differentiates itself from true solutions and suspensions, ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है. हमारा की फोकस colloids के ऊपर रहेगा, तो उसी की डिटेल्स में हम लोग जाएंगे अब. Now in this part, like जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, I will try to highlight the role of surface in colloidal solutions, like why that surface is important. So यहाँ पर आप notice करना, I've taken two examples of colloidal solutions. One is milk. This is an organic colloid.
राइट. इसमें टिपिकली कैसा होता है, जो डीपी रहता है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन्स एंड फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, और वो इतने बड़े साइज के होते हैं आपस में, ठीक है, दैट दे आर इन कोलॉइडल डायमेंशंस. एंड डीएम ऑफ कोर्स वाटर होता है. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस इज इन केस ऑफ मिल्क, लेट मी जूम इन ओवर हियर, दैट जो ये फैट या प्रोटीन के मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनके अराउंड डीएम के यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होकर लेयर बनाते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज वंडरवॉल फोर्सेस. लाइक दीज लेयर्स, they are something which are formed because of a significant surface of the colloidal size particle. And these layers, they act as protective layers. And how do they act as protective layers? So they prevent the colloidal particles, the DP, from not merging with each other. Okay, if somehow you destroy this protective layer, then these colloidal particles can actually merge with each other and become suspension. And this is what happens when you make paneer out of doodh, right? What happens is that you take milk, heat it up, and add some electrolytes to it. Typically, you add lemon or vinegar. So what it does is it destroys these protective layers around these colloidal particles, and then these colloidal particles can combine with each other to undergo what we call as coagulation, merge with each other, and ऐसे ही पनीर बनता है. ठीक है. So this protective layer around the colloid is something very important in terms of stability of colloid. ठीक है. And इस layers of solvent molecules क्यों रहती है around the colloid? Because of the colloidal size dimensions of the particles that allows these layers का formation to happen quite easily. ठीक है. Of course, there are hydrophilic groups present on this protein or fat molecule which keep the water molecules attracted. So this was one type of colloid. Okay. The other type of colloid, you can say an example of an inorganic colloid. Okay. Like AgI in a excess I minus का solution. So इसमें what happens is that AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड के आयंस कंबाइन होते हैं. ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं, एंड व्हाट दे डू इज कंबाइन होकर दे बिकम लार्जर इन साइज. ठीक है, इंडिविजुअल Ag प्लस एंड I माइनस आयन से छोटे रहते हैं, बट जब वो कंबाइन होके ये ऐसा प्रेसिपिटेट या सॉलिडिफाइड फॉर्म लेके आते हैं, तब द साइज इंक्रीजेस, एंड व्हेन दिस साइज बिकम्स लार्ज इनफ, ठीक है, टू जनरेट अ सरफेस, then what happens is on that surface I minus ions are adsorbed. I minus ions क्यों absorb हो रहे हैं? Because I minus ions have like compatibility with the solid or the lattice structure which AgI would be forming. So because I minus are kept in excess, ठीक है, ये excess में रखे जाते हैं deliberately. These I minus ions, they get adsorbed on the surface of the colloid, and these I minus ions, they act as protective layer. ठीक है. तो यहाँ पर you can understand also that why colloidal particles के लिए this surface acts as an important property. So this surface that is generated over these colloidal size particles, colloidal size aggregates, is what adsorbs these I minus ions. So when the AgI aggregate reaches colloidal size, it develops a surface on which I minus gets adsorbed, right? And this charged layer, it again acts as a protective layer. Like ये negatively charged colloidal particle है, ये भी negatively charged colloidal particle है. Like negative charge की layer इसके ऊपर adsorbed है. तो अब ये आपस में combine नहीं होंगे. ठीक है, they will come close but then repel each other. They will not coagulate. They will not form a suspension. Right? But if we destroy it using some way, especially by adding electrolytes, then we can get a suspension, we can get a precipitate. ठीक है. तो ये एक quick example set था to help you understand difference, or not difference, in fact role of layer.
ठीक है, हाँ। देन क्या कह रहे हो कि जय, क्या डाउट है तुम्हारा? कैन यू एक्सप्लेन सेंट्रीफ्यूज? सेंट्रीफ्यूज इज जस्ट हाई स्पीड रोटेशन। मतलब जैसे मिल्क है, तो मिल्क रखा रखा ऐसे सेटल नहीं होता, कॉलोइडल पार्टिकल्स उसके, राइट। बट आप मिल्क को एक सेंट्रीफ्यूज में ले लो, लाइक एक टेस्ट ट्यूब को लो और उसमें मिल्क डालो और उसको हाई स्पीड में रोटेट करो। देन उसका पानी वाला पार्ट एंड उसके फैट्स एंड प्रोटीन वाला पार्ट सेपरेट आउट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज जनरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूज। बस उतना सही पार्ट है। ओके, देन क्या कह रहे हो रुपेश? इन द लेक्चर वी सॉ दैट देयर कैन बी टू प्रोटेक्टिव लेयर्स। व्हाट लिमिट्स द लेयर्स फ्रॉम फॉर्मिंग मोर ऑफ दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स? वो मैं बात करूंगा। अभी यहाँ पर व्हाट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इज जस्ट द अडजॉर्ब्ड आयंस। ये अडजॉर्ब्ड आयंस क्या है? ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, तो ये फिक्स लेयर कराती है। फिर इसके ऊपर जो लेयर आती है, ठीक है, वो पॉजिटिव आयंस की रहती है, ठीक है, दैट इज मोर ऑफ अ डिफ्यूज लेयर। Why? Because the attractive forces like which will be between the I minus ions and K plus ions, ये change होते रहेंगे because of the fluid का nature, like the molecules are in constant movement around them, ठीक है। whereas ये I minus तो क्या है, इस पर absorb हो गए, ठीक है, absorb होने की वजह से they have become fixed, but because the solvent molecules around them keep on moving, the diffused layer, ठीक है, around the first layer, वो भी लाइक उसको बोलते हैं डिफ्यूज लेयर, इट इज नॉट दैट स्टेबल। और उसके बियॉन्ड तो अगेन लाइक इट विल बिकम इवन मोर डिफिकल्ट फॉर द लेयर टू बी फॉर्म्ड। लाइक आयंस कैन कम एंड गो, बट अ लेयर टू फॉर्म विल बी अ चैलेंज, ठीक है। हाँ यथार्थ, दिस आई माइनस का लेयर ऑन द colloidal particles, right, it is considered to be part of the colloidal particle, right? We call this colloidal particle as negatively charged particle because of these adsorbed I minus ions. We will also come positively charged colloid particles जिसमें positive ions adsorb हो रहे होंगे, तो देखते हैं थोड़ी देर में, आप लोगों ने देखे भी होंगे। ऑल राइट, तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट colloids. Now we move on to classification of colloids, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को हम लोग मल्टीपल एंगल्स से देखेंगे। ये पहला एंगल जो है, दिस इज बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, ठीक है। एंड इसमें लाइक एज यू कैन नोटिस देयर आर 8 टाइप्स combining any two of the three phases of matter, but not gas gas, ठीक है। otherwise 3 into 3 9 possibilities थे, but gas gas is a homogeneous mixture, we don't call it as a colloid solution, but all the other combinations can result in formation of a colloid. Now ये जो सामने आपके टेबल है, रट्टा मारना है इसका अच्छे से, ठीक है। कितना अच्छे से? दैट इवन एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं तो उससे आप ये बता पाओ कि ये कौन सा टाइप का कोलॉइड है और उसमें डीपीडीएम क्या होगा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट भी रट्टा मारना है, राइट टू लेफ्ट भी रट्टा मारना है, अच्छे से इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉरी विच कोलॉइडल सिस्टम डज फॉग बिलोंग टू, राइट। तो फॉग किसको बिलोंग करेगा? तो यू शुड रिमेंबर दैट फॉग वाज पार्ट ऑफ अ लिक्विड एरोसॉल, right, in which dp was these liquid particles suspended in gas, ठीक है। मिल्क कौन सा टाइप का कोलॉइड है? लाइक बोथ वेज अराउंड, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा हो, समथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड, तो पूछ लो, अदरवाइज ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी यही टेबल दिया हुआ है, वहीं से उठाया हुआ है। हाँ बोलो निरुद्ध। जेमस्टोन्स क्या हो जाएंगे? सॉलिड एंड सॉलिड टाइप के कोलाइड हो जाएंगे, राइट। उसमें डीएम भी सॉलिड ही है और डीपी भी सॉलिड पार्टिकल्स ही रहेंगे। What is foam rubber? Foam rubber is something you can think of जैसे स्पॉन्ज होते हैं ना, मतलब लाइक जैसे मैट्रेस, फोम वाले मैट्रेस आते हैं,
या फिर आप लोगों ने बर्तन धोए होंगे लॉकडाउन में, तो वो स्कॉच ब्राइट वगैरह जैसे फोम रहता है, लाइक ऑफ दैट कैटेगरी। हाँ। ठीक है। देन बटर, बटर में like what you have is it is considered to be a gel kind of a colloid. तो इसमें what we say is that the DM is solid only, right? Whereas this जो जो भी वो ऑयल वगैरह रहेगा, like oils which would be present making the butter, ठीक है, वो आपका मतलब of course butter not in the molten form, मतलब ऐसा नहीं कि बटर को आपने of course you would change the category of colloid if you melt the butter, like जो रेडीमेड बटर मिल रहा है आपको which is solid form में, and उसके अंदर you have these wrapped colloidal particles which we consider as liquid only, ठीक है। बट हाँ like if you melt it up तो ये like पूरा ही लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मेल्ट करने के बाद में like butter maybe it can come in liquid category, emulsion की category में आ जाए, ठीक है। all right. then क्या पूछो वरुण, will ice with impurities be a colloidal solution? um depend करता है, if the impurities are of colloidal dimensions then we can say, ठीक है। all right, now हाँ हाँ राइट वर्ड, ठीक है। now यहाँ पर लेट्स अंडरस्टैंड। अच्छा, क्या कह रहे हो अरहम? स्टार डस्ट, डस्ट को जनरली हम लोग ये इस कैटेगरी में डालते हैं ना, लाइक स्मोक और एरोसॉल में, मतलब लाइक सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन गैस। ऑलराइट, अच्छा तुम क्या कह रहे हो? स्टार डस्ट, लाइक स्टार डस्ट एज इन व्हाट डू यू मीन बाय स्टार डस्ट? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, एरोजेल वाला जो रहता है, तो आई थिंक वो राइट राइट राइट, ये गैस इन सॉलिड कैटेगरी में आना चाहिए, because it is mostly like empty only, 99.8% कुछ वो empty रहता है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं ना इसमें। we in this chapter when we are going to now go into the details, तो आप primarily notice करना, हम लोग आगे जो discussions करते हैं वो solid in liquid type के colloidal salts का ही primarily discussion करेंगे,
ठीक है, आपने नोटिस करा होगा, इस वीडियो लेक्चर्स भी देखे होंगे जब इसके, तो प्राइमरीली सॉलिड एंड लिक्विड टाइप के एरोसोल का डिस्कशन होगा उसमें, ठीक है। एंड उसमें भी मोस्ट ऑफ द केसेस में वाटर विल बी द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। इन सम केसेस इट कैन बी अनदर लिक्विड, फॉर एग्जांपल अल्कोहल और बेंजीन आल्सो, but in most of the cases we will be having water as the DM. All right, now let's do another classification of colloids based on interaction between DP and DM. Okay, and in this classification we come across these two types, lyophobic and lyophilic. Right, lyophobic colloids कैसे रहते हैं? Lyophobic colloids में, as per the name of it, that they are solvent hating. Lyo will be the word standing for solvent, and phobic means hating. That is, that the DP particles do not interact well with the DM particles. And lyophilic will say solvent loving, like the DP interacts strongly with DM. So generally जो inorganic colloids होते हैं वो lyophobic की कैटेगरी में आते हैं, और जो ऑर्गेनिक colloids होते हैं वो lyophilic की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे भी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दो एग्जांपल दिए थे, एक मिल्क का और एक AgI माइनस का, so these are classic examples of differentiating between lyophobic and lyophilic colloids. So यहाँ पर milk is a lyophilic colloid, जहाँ पर the DP, say the protein molecule, is well interacting with the solvent molecules, and उसकी वजह से उसके around यहाँ पर protective layers of solvent molecules form हो गई हैं. Whereas in case of this AgI minus, it does not interact well with water molecules. Like this AgI, in fact, if given an opportunity, it would not want to mix with water. It is not one of those soluble salts. It will quickly combine with the other Ag plus and I minus ions to precipitate. Okay. So this is your definition based difference between lyophobic and lyophilic colloids. Now again, there are these common examples of lyophobic and lyophilic colloids which I would recommend कि आप ध्यान में रखना, right? जैसे मैंने बोला, these are mostly inorganic colloids in nature, right? तो इसमें metals के colloids जो होंगे, metal के oxides, hydroxides या sulfides के जो colloids होंगे, right? These are primarily inorganic colloids. ये lyophobic nature के रहेंगे, and these organic colloids like starch, gelatin, like these milk and cellulose, these other examples, these are going to be of organic nature and they are going to be lyophobic colloids. ठीक है, तो एक ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स, एंड इनके बीच के कुछ प्रॉपर्टीज के डिफरेंस भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो मैं एक एक करके वो प्रॉपर्टीज के डिफरेंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। फैट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी वर्ड फैट वाला जो प्राइमरीली एग्जांपल रहेगा उसमें आपने नोटिस किया होगा वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं। ठीक है, ऑलराइट, यहाँ पर लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड्स। एक एक करके इनके कुछ डेफिनेशन डिफरेंस तो हमने समझ ही लिया है, बट प्रॉपर्टीज का भी डिफरेंस रहेगा। ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक बार क्विकली एक रीड आप लगा लो। ठीक है, देन विल गो पॉइंट बाय पॉइंट एंड आंसर योर डाउट्स व्हिच यू हैव।
गोल्ड नंबर में मैं थोड़ी देर में आता हूँ रोहित. We'll talk about it. हाँ हाँ जश बोलो. यहाँ पर actually we say that lyophobic colloids, they show a good Tyndall effect, whereas lyophobic colloids, they show a weak Tyndall effect. ऐसा क्यों रहेगा वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ. क्या कह रहे हो रोहित? एनसीईआरटी में देयर इज नो डेटा ऑन गोल्ड नंबर. हो सकता है. That might be the case. मेरे को ऐसा एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है. हाँ हाँ, मिल्क शोज वीक टिंडल इफेक्ट. ऑलराइट, ये डिफरेंसेस देखिए आप लोगों ने. एक एक करके इनके थ्रू क्विकली चलते हैं अभी. लाइक प्रेपरेशन वाला पार्ट जो है, इसमें लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने के लिए एक अलग सेट ऑफ मेथड्स लगते हैं जो हम लोग एंड में डिस्कस करने वाले हैं. लायोफोबिक कोलॉइड्स आर क्वाइट इजी टू मेक. सिंपल मिक्स करा, शेक करा, लायोफोबिक कोलॉइड्स तैयार हो जाते हैं, राइट. And that is why from the point of view of stability and reversibility, we say that lyophobic colloids are quite stable and reversible. Like जैसे for example मिल्क को आपने सेंट्रीफ्यूज में लिया तो उसका सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो गया, बट आप वापस से उसको मिक्स कर दो तो वापस से कोलॉइड तैयार हो जाएगा. दैट इज व्हाई वी कॉल इट दिस रिवर्सिबल नेचर. बट यही चीज अगर आप लेट्स से लायोफोबिक कोलॉइड्स के साथ कर देते हो, फॉर एग्जांपल आपका सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइड था बट आपने उसको प्रेसिपिटेट कर दिया, लाइक उसका सस्पेंशन बना दिया AgI का, तो फिर ऐसा नहीं कि उसको स्टर करा, शेक करा और वापस से कोलॉइड बन जाएगा. वैसा नहीं होगा. यू वुड नीड स्पेशल मेथड्स. ठीक है. देन विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, ये दो प्रॉपर्टीज इनकी इस तरीके से डिफर करती हैं, ये आप ध्यान में रख लो. ठीक है. लायोफिलिक कोलॉइड्स में द विस्कोसिटी इज generally higher than that of sulfate and surface tension is lower than that of solvent, whereas in case of lyophobic colloids the viscosity is nearly same as that of solvent but surface tension is in fact surface tension is also quite same as that of solvent only. ठीक है. ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रहेगी इनकी, ध्यान में रखना. देन हाइड्रेशन के बारे में तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन करा ही था, राइट. दैट these layers are responsible for stability of the colloid. Lyophilic colloids में the stability comes because of the solvation, the layers of water molecules that form around the colloidal particles. Whereas in case of lyophobic colloids, ऐसा कुछ solvent के साथ में interaction नहीं होता है, but the stability comes from these positive or negatively charged ions that are adsorbed on the surface of the colloids, right. देन विजिबिलिटी एंड सब में थोड़ा सा एक डिफरेंस रहेगा. कोएगुलेशन के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ते हैं, लाइक देयर इज अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर व्हिच टॉक्स अबाउट कोएगुलेशन एंड हाउ इट इज टू बी डन. तो जनरल डिफरेंस है कि लायोफिलिक कोलॉइड्स में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लगता है टू कोएगुलेट देम, व्हेयरएज लायोफोबिक में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ electrolytes can work in coagulating these lyophobic colloids. They are less stable in nature. ठीक है. तो ये इनके प्राइमरी डिफरेंसेस थे. टिंडल इफेक्ट वाला बात मैं थोड़ी देर में कर लूंगा. माइग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग व्हिच इज अगेन डिपेंडेंट ऑन the charge that these particles have. ठीक है. तो ये बेसिक सेट ऑफ डिफरेंसेस थे between lyophobic and lyophilic colloids. All right. Now another classification which we are going to talk about is based on the charge. Right. This is not something which is there in the booklet. तो ये मैंने नोट्स में भी लिखवाया होगा आपको, वीडियो लेक्चर्स में भी. तो ये आप डेफिनेटली ध्यान में रखना that there are positively charged and negatively charged colloids.
तो यहाँ पर कैसा है, लायोफोबिक कोलॉइड्स में जनरली जो एक्सेस आयन इन द सोल्यूशन होता है विच इज कॉमन विद द डीपी दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड ऑन इट्स सरफेस. नाउ यहाँ पर अब नोटिस करना. अच्छा, जश का एक डाउट है. जश का क्या डाउट है जश आपका? दैट व्हाई कांट दे बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप इफ दे आर इन कोलॉइडल साइज रेंज. तो माइक्रोस्कोप से भी देखने के लिए ना टिंडल इफेक्ट हेल्प करता है जश. मतलब जो लाइट कोलॉइडल पार्टिकल्स पे स्ट्राइक कर रही है वो लाइट स्कैटर होनी चाहिए, तभी तो आपको पार्टिकल्स दिखते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर क्योंकि स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट रहता है, स्कैटरिंग स्ट्रॉन्ग रहती है, इसलिए पार्टिकल्स अच्छे से दिखते हैं. यहाँ पर टिंडल इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, स्कैटरिंग इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए पार्टिकल्स इतना इजीली दिखते नहीं है. ठीक है. Now, coming to this classification, which was based on the charge, like you have positive and negatively charged colloids, right? And isme, as you can understand, in lyophobic colloids, when we are preparing these lyophobic colloids, जो excess ion रहता है in the solution, which is common with DP, that gets absorbed on the surface. So to create a positively charged colloid and negatively charged colloid, we start with the same ingredients, AgNO3 और KI को mix करेंगे. But अगर मैंने AgNO3 को excess में रखा है, solution में Ag plus ions का excess है, तो what I will see is I'll get a positively charged colloid. Like AgI के ऊपर Ag plus ions absorb हो जाएंगे. But अगर मैंने K minus को excess में लिया, then I minus ions get absorbed and what I get is a negatively charged colloid. ठीक है. Now, apart from understanding positively charged and negatively charged colloids, what is very very important, very very crucial for you is to remember these examples. ये बहुत important है. Like examples का खास weightage रहता है इनमें. You should remember the metal oxides and metal hydroxides, they generally tend to form positively charged colloids. ठीक है. Whereas metal के जो colloids होते हैं, metal sulfides के जो colloids होते हैं, ठीक है, ये सब negatively charged colloid रहते हैं. ठीक है. Even blood is a colloidal solution which is considered to be negatively charged colloids because of the these bicarbonate ions that are present inside it. ठीक है. Then ये SnO2 का एक example है. ठीक है, which can be a positive colloid or negative colloid depending upon the pH of the solution. ठीक है. तो ये आप ध्यान में रखना examples. These are going to be important. इनमें थोड़ी थोड़ी details दी हुई हैं of you know how the positively charged colloid is there, like what is the dP and what is the ion that gets absorbed on that dP, giving it positive charge. ठीक है. Same goes on the right hand side. ठीक है. तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोलॉइड का डिफरेंस आप लोगों को क्लियरली समझ में आना चाहिए. ठीक है. यानी डिफरेंसेस, सॉरी, एग्जांपल जरूर याद रहना चाहिए. ठीक है. इसमें किसी को कुछ डाउट है? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन है? अच्छा, तुमको कुछ पूछना था जश? तुमने हैंड रेज किया था या गलती से हो गया था? ओके. वर्ड का डाउट है, कैन बोथ काइंड ऑफ सॉल को एग्जिस्ट? नहीं नहीं. इनफैक्ट जब आप कोएगुलेशन पढ़ते हो तो कोएगुलेशन में एक तरीका तो क्या है कोएगुलेट करने का, कि आप इलेक्ट्रोलाइट डाल दो. ठीक है. एक और तरीका होता है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव सॉल, ऑपोजिट चार्ज सॉल को मिक्स कर दो, तो ये भी कोएगुलेट कर जाएंगे फिर. ठीक है. SnO2 के बारे में क्या पूछ रहे हो ईशानी? SnO2 में, हाँ, मतलब इट्स जस्ट द you know acidic or basic medium which drives what kind of colloid is going to be formed. तो यहाँ पर ये SnO2 जो है, ये आपने देखा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, राइट? आपने याद तो करो, पीरियोडिक में पढ़े थे कुछ कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एग्जांपल. सो SnO2 it reacts with the acids as well, base. So depending upon which medium it is present in, it will undergo that kind of a reaction and form accordingly that kind of colloidal solutions. तो SnO2 अगर acidic medium में है तो SN4 plus ions will get adsorbed on SnO2, and अगर ये
बेसिक मीडियम में है तो ये SnO3 2- आयंस होते हैं, ये अब्सॉर्ब हो जाते हैं SnO2 की सरफेस पर, तो ये गेट पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड। ठीक है। हाँ, प्रिडिक्ट मत करना, याद रखना, प्रिडिक्शन वगैरह नहीं हो पाएंगे आपसे। लाइक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जांपल्स ध्यान में रखना। ठीक है, दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स व्हिच यू ऑट टू रिमेंबर कि हाँ मेटल मेटल ऑक्साइड्स के, नहीं मतलब इतने कवर कर लो तो काफ़ी है, मतलब अब इससे ज़्यादा वैरायटी तो मतलब ठीक है और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट नॉट समथिंग विच यू वुड बी यू शुड बी गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ। ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब कि यू आर एबल टू प्रिडिक्ट फ्रॉम योर साइड बाय लुकिंग एट अ कंपाउंड ये कौन सा टाइप का कोलाइड बनाएगा, बट जनरली सल्फाइड्स के एग्जांपल्स मिलते हैं नेगेटिव चार्ज कोलाइड, मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स के पॉजिटिव कोलाइड्स। ठीक है, ऑल राइट। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन भी देखना कोलॉइड्स की, विच इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी विच इज देयर, राइट। तो इसमें दिस इज अनदर क्लासिफिकेशन, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल रहता है, जो कोलॉइडल पार्टिकल रहता है, अगर वो मल्टीपल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के एग्रीगेशन से बना होता है तो उसको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड कहते हैं। लाइक जैसे सल्फर का या गोल्ड का जो कोलॉइड होता है, इसमें कैसा होता है, लाइक इंडिविजुअल गोल्ड का एटम तो छोटा है, बट गोल्ड के एटम्स देन आपस में कंबाइन करते हैं एंड देन कोलॉइडल डायमेंशंस में आ जाते हैं एंड एक सरफेस जनरेट कर लेते हैं जिसके ऊपर negatively charged ions get adsorbed and those then protected. So those colloidal particles are called as multimolecular colloids. ठीक है। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स में कैसा रहता है, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स लाइक यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज स्टार्च सेल्यूलोज प्रोटीन्स, these polyethylene nylon, these are examples of macromolecular colloids जिसमें the individual size of the particles is large enough to be in colloidal dimensions, तो इनको हम लोग मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड भी कहते थे। ठीक है। देन देयर इज दिस इंटरेस्टिंग कैटेगरी ऑफ एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है। तो इसके बारे में नोटिस करना दैट इसका जो एग्जाम्पल है, ठीक है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसके बारे में ध्यान से समझना। लाइक देयर आर दीज सब्सटेंसेस, दीज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जिनको अगर आप लो कॉन्सेंट्रेशन में डालते हो तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लाइक यहाँ पर आप नोटिस करना इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस डायग्राम, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पर वाटर है और वाटर में आपने लाइक सोप या डिटर्जेंट के आयंस डाले हैं। ठीक है, सोप या डिटर्जेंट डाला है बट कम क्वांटिटी में डाला है। ठीक है, तो कम क्वांटिटी में क्या होता है, इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये आपका कोलॉइडल पार्टिकल्स जो रहते हैं ये मोस्टली, नॉट इवन कोलॉइडल पार्टिकल्स, दे आर नॉट कोलॉइडल पार्टिकल्स राइट नाउ, ये जो यू कैन से आयंस या मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, ऑफ दीज soaps and detergents which are typically these sodium stearate kind of an example, जिसमें एक large hydrocarbon chain होती है। ठीक है, and then एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप रहता है। ठीक है, so इसमें what happens is, as you can notice, ये जो large hydrocarbon chain है ये नॉन पोलर नेचर की है, और जो इसका एक एंड है ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है। So we have these polar and non-polar parts present in the salts of fatty acids which make up these soaps. ठीक है, now this is when you know added in small quantity। ठीक है, तो ये कैसा रहता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, इन विच जो ये पोलर वाला एंड है ये वाटर के अंदर इंटरैक्ट करेगा बिकॉज ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, एंड ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं दे वुड टेंड टू स्टे अवे फ्रॉम वाटर। ठीक है, नाउ व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, बियॉन्ड अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, they these ions or these you can say these salt ions, they kind of behave in a particular way, they form aggregates in a particular way which result in formation of colloidal particles, we call these as micelles। ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करना ये जो colloidal particles थे हायर कॉन्सेंट्रेशन में आने पर क्या होता है, दैट ये जो हाइड्रोफोबिक
इनके टेल्स थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर ऐसे एक स्फेरिकल गुच्छा, एक स्फेरिकल बंच बना लेते हैं, ठीक है, विद देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स coming out and interacting with water molecules, whereas their hydrophobic tails not required to interact with water molecules and interact with each other only. ठीक है, so such associated particles are called as associated colloids or the special name micelle. ठीक है, ये समझ में आया आपको? An introduction of associated colloid. इसमें कुछ डाउट है? अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर नोटिस करना। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड जो रहता है, एसोसिएटेड कोलॉइड, दिस हैपेंस अबव अ थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, लो कॉन्सेंट्रेशन पर तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह रहता है, एंड हायर कॉन्सेंट्रेशन पर ये ऐसे एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जो एक कॉन्सेंट्रेशन रहती है, ठीक है, जिसके ऊपर ये कोलॉइडल सॉल्यूशंस का फॉर्मेशन होता है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सीएमसी, क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो दिस is the, you can say, minimum concentration that is required for micelle formation. ठीक है, now if you will give me a minute, तो इसका मैं एक micelle experimental determination का भी एक क्विक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। Just give me a moment. Let me find the correct. ओके, ये वाला ही आई थिंक। एक सबसे इजी टू अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन रहेगा। ठीक है, ये जो सीएमसी रहता है, इसके बारे में आप लोग नोटिस करना, ये वीडियो लेक्चर्स में नहीं था। So let me paste that graph over here. So there are various experimental ways to determine CMC. ठीक है, सो आप जो सोल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है, उस सोल्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एंड अब्रप्ट चेंजेस इन दोज प्रॉपर्टीज आर एन इंडिकेटर ऑफ CMC. सो जैसे फॉर एग्जांपल ओस्मोटिक प्रेशर है, राइट? तो ओस्मोटिक प्रेशर कैसा है? यू रिमेंबर इट वाज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू ICRT। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो कंपाउंड का, ठीक है, इनिशियली तो कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो, ठीक है, एंड यू हैव
this increasing osmotic pressure. ठीक है, but beyond CMC what will happen is that these colloidal particles will associate with each other, and upon increasing that concentration, like association की वजह से अब ये osmotic pressure जो है ये आपका सैचुरेट हो जाएगा. ठीक है, इसके बियॉन्ड अब आप जब कंपाउंड डाल रहे हो, लाइक यू आर एडिंग द कंपाउंड, व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज ऑल एडिंग अप टू दीज माइसेल्स. ठीक है, तो आपका ये ऑस्मोटिक प्रेशर सैचुरेट हो जाता है. ठीक है, सरफेस टेंशन जो है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एंड जनरली व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स टू अ सॉल्यूशन, सरफेस टेंशन जो है वो ग्रेजुअली कम होता है. ठीक है, बट CMC के बियॉन्ड दैट सरफेस टेंशन अगेन बिकम्स स्टैग्नेटेड. ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में आपने पढ़ा था. ठीक है, इसमें ये वाला पार्ट नोटिस करना, ये मोलर कंडक्टिविटी का है. सो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज एज यू इंक्रीज द concentration. देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी. हाउएवर once these micelle formation happens, like there is a sharp decrease in the molar conductivity. ठीक है, देन ये आपका यू कैन से टर्बिडिटी का भी जो प्रॉपर्टी होता है, लाइक टर्बिडिटी आप लोगों ने ऑर्गेनिक में देखा होगा ना, दैट यू कैन से द विजिबिलिटी थ्रू द सॉल्यूशन, लाइक यू थ्रो अ लाइट एंड कितना ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी था. तो उसमें क्या होगा, जब माइसेल फॉर्मेशंस होगा तो उसके बाद में लाइक द turbidity because of these associated colloids, these macro or you can say not macro, these associated colloids, it increases beyond CMC. Before तो कैसा ये strong electrolyte है, homogeneously dispersed particles है, but now they start forming these you can say aggregated particles. ठीक है, इस तरीके से ये रहता है. तो ये इसके एक सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन के तरीके रहते हैं. एंड इनके बारे में एक बेसिक आइडिया आपको रहना चाहिए. ठीक है, सो इसमें बस मैं एक और ऐड कर देता हूँ, एक और जो मैं चाहता था ऐड करना, विच वाज कंडक्टिविटी. ठीक है, ये तो क्या था, ये तो मोलर कंडक्टिविटी का था. ठीक है, अगर सिर्फ कंडक्टिविटी का रहता है तो कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ ना थोड़ा सा इसमें इस तरीके से रहेगा, लाइक इंक्रीज होगा. ठीक है, विद अ ग्रेटर रेट एंड देन इंक्रीज होगा बट विद अ लेसर स्लोप. सो ये आपका कंडक्टिविटी का रहता है. ठीक है, तो ये आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, दैट हाउ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी वेरी विद concentration. So if you remember, conductivity increases with increase in concentration, but molar conductivity decreased with increase in concentration. ये आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखे थे, याद है कि नहीं याद है? तो इसमें यहाँ पर इसको मैं जस्ट एक्स्ट्रा हाईलाइट कर रहा हूँ दैट कंडक्टिविटी के भी इंक्रीज में एक अब्रप्ट चेंज आता है, एंड मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज में भी एक अब्रप्ट चेंज आता है, व्हिच इज एन इंडिकेटर ऑफ दिस CMC कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, अच्छा, देन CMC के बारे में एक दो एडिशनल पॉइंट्स और यहाँ पे ध्यान रखना, दैट अगर आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है, राइट, कोलॉइडल पार्टिकल एज इन दिस आयन, ठीक है, ऑफ द फैटी एसिड, इसका अगर हाइड्रोफोबिक चेन जो है वो और बड़ा है, ठीक है, इफ इट इज इवन लॉन्गर, ठीक है, देन CMC वुड बी लेसर. ठीक है, कम कॉन्सेंट्रेशन में ही आपका माइसेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा.
ठीक है. And also if the polarity of DM, polarity of DM क्या है यहाँ पर तो water है, ठीक है, and water is one of the most polar solvents, right? So if you have another solvent which has lesser polarity, तो फिर उस केस में you would require a greater concentration of these ions to form these micelles. ठीक है, तो ये एक important piece of information है about micelle formation जो आप ध्यान में रखोगे. ठीक है. Then there is something called as Kraft temperature also. So we say above this temperature only micelle formations happen. ठीक है. हाँ, कौन सा वाला, ये पोलैरिटी वाला पॉइंट कह रहा हूँ. इसमें बेसिकली सो इफ पोलैरिटी इज लेस, ठीक है, पोलैरिटी का रिलेशनशिप कहाँ से आता है? सो इफ यू रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा ना, k q1 q2 by r square is the force of attraction. तो इसमें जो एक k होता है, ये k होता है 1/4 pi epsilon naught epsilon r, राइट? वैक्यूम में तो 1/4 pi epsilon naught होता है, बट किसी मीडियम में होता है तो ये epsilon r भी आता है, relative permittivity. तो this is actually the quantity that represents the polarity of the medium. ठीक है. तो यहाँ पर लाइक जो मीडियम है, अगर मीडियम की पोलैरिटी कम रहती है, ठीक है, देन व्हाट वी से इज दैट उसमें greater amount of ions, or you can say greater amount of such sterate ions would be required to form such micelles, some stable aggregates to come into this micelle formation. ठीक है. Alright, now अब यहाँ पर आप नोटिस करना, ये एक और टर्म रहेगी, क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, that is seen with these micelle formations, that the temperature should be above a particular temperature called as Kraft temperature, then this micelle formation happens. ठीक है. concentration का भी condition और temperature का भी condition है, above which this micelle formation happens. ठीक है. इसमें ये कंसंट्रेशन वाला पार्ट ज़्यादा क्रूशियल है, इसकी डिटेल्स ये मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करी है, इनको ध्यान में रखना. ठीक है. ऑलराइट, सो दीज वर द वेरियस क्लासिफिकेशंस ऑफ कोलॉइड्स जो हम लोगों ने देखे. ठीक है. एज अ क्विक रिकैप, हम लोगों ने मल्टीपल एंगल्स से कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखा है, राइट? एक फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर, ठीक है, देन सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बेसिस पर, डीपीडीएम के इंटरेक्शन के बेसिस पर, then charge के basis पर, positive negative charge, and then based on the type of colloidal particle like multimolecular, macromolecular and associated colloids. ठीक है. तो ये आपके different classifications थे of colloidal particles और colloidal solutions from multiple angles. तो ये आप ध्यान रखोगे. Now let's move on to studying the properties of colloids. ठीक है. अब इसमें लाइक स्टार्टिंग फ्यू प्रॉपर्टीज, लाइक जैसे हेट्रोजीनियस कैरेक्टर है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था. फिल्टरेबिलिटी के बारे में बताया था, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर काम नहीं करता इनके लिए, लाइक यू विल हैव टू हैव स्पेशल मेम्ब्रेन्स व्हिच do not allow the colloidal particles to pass through, but solvent particles can pass through. ठीक है. देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर जनरली कम हो जाती हैं एज कम्पेयर टू व्हाट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय से ट्रू सॉल्यूशंस और ट्रू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कंसंट्रेशन. ठीक है. ट्रू सॉल्यूशंस में you will have more ions and more colligative properties being shown, whereas in case of these colloidal solutions, because these particles combine with each other, like I becomes much lesser than 1, and that is why these colligative properties becomes quite small. ठीक है.
देन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर नोटिस करना, एक तो विजिबिलिटी के बारे में बात करा जाता है। तो विजिबिलिटी इन कोलॉइडल पार्टिकल्स की अंडर माइक्रोस्कोप रहती है, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट दैट दे डू, ठीक है, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट विच दे डू इज व्हाट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट, राइट। तो ये टिंडल इफेक्ट इज बेसिकली like if you have a true solution and uske across you throw a beam of light, as you can see in this image, you will not see the kind of path that the light traces through, because the size of the particles is quite small that they do not interact with the light that is passing through them, ठीक है। जो Na plus and Cl minus ions है inside this true solution, they are quite small in size, they don't interact with the light passing through. Whereas in case of colloidal solutions, the size of particles is large enough to scatter these light rays coming. So if you have a ray of light coming, the colloidal particles can interact and scatter that light, and that makes the particles visible and also the path of the light that it is taking. This is what is called as Tyndall effect. Okay. Now, if we go into the details of Tyndall effect, then there is an important understanding that we develop that Tyndall effect अच्छे से होने के लिए there are two more conditions that need to be satisfied, ठीक है। तो यहाँ पर नोटिस करना like in fact two conditions में पहला condition तो हमने बात ही कर लिया, that size of particles should be large enough for interaction to happen. The other important condition also is the difference between the refractive index of dp and dm, ठीक है। if there is a significant difference between the refractive index of dp and dm, then we have a strong pronounced Tyndall effect. But if the difference between dp and dm is not that much, then what we find is that the Tyndall effect is not well defined, it is quite weak in nature. तो लायोफोबिक colloids जो होते हैं इनमें एक्चुअली dp dm की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में लायोफिलिक कोलॉइड्स में डीपीडीएम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में डिफरेंस कम ही रहता है, एंड एज अ रिजल्ट टिल्टर इफेक्ट वीक रहता है. बट इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स, बिकॉज ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डीपी एंड डीएम, द टिंडल इफेक्ट इज क्वाइट वेल डिफाइंड. ठीक है. हाँ, क्या कह रहे हो वरुण? You are asking about Tyndall cone. Why is it a cone, not a cuboid? ये जो Tyndall cone की बात हो रही है, ये again it is because of the refractive index. Like ये आप लोगों ने देखा भी होगा ना, like जब आपने ray optics पढ़ा होगा, that when light passes through a medium, like it undergoes this phenomena of refraction. उसकी वजह से Tyndall cone form हो रहा है. ठीक है. इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, मतलब देयर इज नॉट अ नहीं समझा नहीं मैं आपका. अच्छा, ये इसमें कह रहे हो आप? हाँ, तो वो मतलब डिपेंड करता है ना, अगर यहाँ पर लाइक इफ द लाइक ray of light is passing and or beam of light is passing, ठीक है, and depending upon like वो कैसा light है, if it is of a single wavelength or multiple wavelengths, like you can have different wavelength being scattered. मतलब so in fact मैं इसके बाद में अभी कलर के बारे में बात करने वाला हूँ. So if you pass a light which is of multiple wavelengths, then certain wavelengths they would interact well with the colloidal particles and get scattered more, and as a result you see certain color of colloidal particles. तो मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ उसके बारे में. ठीक है. हाँ हाँ, यहाँ पर भी like in true solutions also the light is getting refracted. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हो ही रहा है. ठीक है. बट दिस थिंग इज दैट बिकॉज इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी पार्टिकल्स, ठीक है, इट इज नॉट गेटिंग स्कैटर्ड, लाइक वी आर नॉट एबल टू सी दैट.
ठीक है, यहाँ पर जस्ट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे इल्यूमिनेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लास वॉल के साथ में जो पार्टिकल्स के साथ में लाइट इंटरेक्ट कर रहा है, बट इन द सोल्यूशन देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो स्कैटरिंग दैट इज हैपनिंग. यहाँ पर देयर इज अ स्कैटरिंग दैट हैपन्स एंड दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द बीम ऑफ लाइट. ठीक है, नाउ अब आप नोटिस करना यहाँ पर ये कलर का भी मैंने बात करा है इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. तो यहाँ पर नोटिस करना द कलर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्कैटर्ड बाय द dispersed particles. ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द पार्टिकल्स. सो यहाँ पर गोल्ड सॉल का ये एग्जाम्पल लिया है. ठीक है, एंड ये याद रखना गोल्ड सॉल का एग्जाम्पल, लाइक the gold sol depending upon the size of the particle tends to show different color. The finest gold sols are red in color, like जिसमें जो gold के particles, जो colloidal particles, they are of smallest sizes, they are typically red in color, and if size of those particle increases then the color changes from red towards blue towards finally golden. ठीक है, I think silver का भी इसी pattern में रहता है. हाँ, उसमें येलो से स्टार्ट रहता है, येलो से रेड, फिर पर्पल, फिर वायलेट. ठीक है, ये दो एग्जांपल ध्यान में रखना. ठीक है. ऑलराइट, हाँ, क्या कह रहे हो रूपेश? What happens in iodine clock experiment in which solution constantly changes color on its own? मतलब कलर चेंज होने का मतलब जस्ट ये एक रीजन नहीं होता, मतलब देयर आर मेनी अदर reasons, like depending upon the kind of reaction and the kind of products that are forming right with time. तो वो different colors come because of those different substances that are getting formed. मतलब जैसे आप लोगों ने अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, like different ions have different ions of different transition metals can show different color. In fact उसमें क्रोमियम का एक क्लासिक एग्जांपल लिया होगा कि क्रोमियम का देखो +3 आयन का ये कलर है, +6 आयन का ये कलर है. राइट, ठीक है. सो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में आता है, राइट, टिंडल इफेक्ट एंड द कलर दैट इज शोन. ठीक है, देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में वी नोटिस ब्राउनियन मोशन. Mechanical properties में we come across these Brownian motion as another important property, and what it is that these colloidal particles are always in like constant state of motion. ठीक है, and this constant state of motion is because of impact between the solvent, the DP, and colloidal particles. ठीक है, so अगर आपका like colloidal particle बड़ा साइज का है, ठीक है, तो ब्राउनियन मोशन कम हो जाता है, ब्राउनियन मूवमेंट कम हो जाता है. ठीक है, छोटा साइज का पार्टिकल है तो ब्राउनियन मूवमेंट और प्रोमिनेंट रहता है. ठीक है, these number of collisions that happen they increase. ठीक है, and with temperature also Brownian movement increases. ठीक है, in fact
वैसे तो ये डेरिवेशन है नहीं आपके सिलेबस में, बट स्टिल मैं चिपका देता हूँ. Just give me a moment if I can find that. ठीक है. अरे कहाँ गया? ठीक है, इसकी डिटेल्स में मत जाना. दिस इज जस्ट समथिंग जो मैं एज एन एडिशनल पॉइंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ. एक मिनट, लेट मी फाइंड सम प्लेस फॉर इट. ठीक है. Although Einstein used it to derive Boltzmann constant and subsequently Avogadro's number, ठीक है, but not to get into the much details of it. ये एक आप important टेक अवे लिखना है यहाँ पर. ठीक है, विस्कोसिटी अगर बढ़ जाती है सॉल्वेंट की तो भी आपका ब्राउनिन मूवमेंट कम हो जाता है. पार्टिकल्स का साइज अगर बढ़ जाता है तो भी ब्राउनिन मूवमेंट कम हो जाता है. टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ब्राउनिन मूवमेंट भी आपका बढ़ जाता है. ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज for you to remember about factors that affect Brownian motion. ठीक है, ये एक ध्यान में रख लेना. Alright, then electrical properties में we talk about this layer of charge that is above the colloidal particles, right? So you have negatively charged particles if they are getting adsorbed, so that will be called as a fixed layer, and around this there is this positively charged layer that gets formed, which is called as a diffuse layer. And this double layer is something which is called as Helmholtz double layer, and it is related to the stability of the colloidal particle, right? The greater the potential generated by this double layer, we call it as zeta potential or electrokinetic potential, the more stable is the colloid, stable against coagulation. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है. नाउ इसी में किसी का तो कुछ डाउट था ना? किसने पूछा था? आई थिंक स्टार्टिंग में. कहाँ गया? मिल नहीं रहा. किसी ने तो पूछा था ना इस पे डाउट, समथिंग रिलेटेड टू like why only 2 layers, why not 3 layers or 4 layers? हाँ, तुमने पूछा था शायद रुपेश. हाँ बोलो. सर माय डाउट वाज इसके ऊपर एक और लेयर ऑफ I माइनस क्यों नहीं बन सकता, बट देन यू हैड आंसर्ड इट दैट टाइम. अच्छा अच्छा, ठीक है. All right, so this is something which is another important electrical property, like this zeta potential. This is related to the stability. ठीक है. Now ठीक है, आफ्टर दिस वी कम टू द पॉइंट ऑफ कोएगुलेशन. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का जैसे मैंने आपको बताया
प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में मैंने क्या क्या बता दिया आपको, कुछ सेट ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टी एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बाद में वी टॉक अबाउट दिस, I should not say property, but a phenomena that is again important for colloids is the phenomena of coagulation. And in this, यहाँ पे आप notice करना, like this phenomena of coagulation or flocculation is like the colloidal particles combining with each other, ठीक है, combining with each other and forming these large suspension size particles, ठीक है। So अब coagulation कराने के multiple तरीके होते हैं, ठीक है। One of the ways is by adding electrolytes, ठीक है, that is the simplest and the most used way. So small amount के electrolytes रहते हैं, ठीक है, in the colloidal solutions, they are necessary for the stability of colloids, ठीक है। small amount में colloids रहेंगे, electrolytes रहेंगे, जैसे गोल्ड का जब सॉल्ट बनता है, ठीक है, गोल्ड का जब colloid बनाया जाता है तो गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर ट्रेसेस में like very very small quantities of electrolytes are added because then they get absorbed on the surface of those colloidal particles and prevent those colloidal particles from coagulating. तो small amount में जरूरी रहते हैं for the stability. But अगर यहाँ पर larger amount में electrolytes add कर दिए जाते हैं, ठीक है, if larger amount में electrolytes are added, then what happens is that this protective layer of ions which was formed, ये opposite charged ions के साथ में interact करके distort हो जाती है, and this can lead to coagulation of colloidal particles, and once coagulated then separating उनका बहुत difficult हो जाता है, ठीक है। So these neutral particles, once these charged layers are removed, they start precipitating, ठीक है। Now these term flocculation, coagulation, they are one and the same, but थोड़ा सा अंतर इसमें यही है that flocculation is something जहाँ पर we can say that this coagulation is something which is not severe. It can be like reversed by rigorous shaking, ठीक है। But coagulation में when we add higher concentration of electrolytes, like the coagulation that happens, it cannot be simply reversed by shaking. Like the colloidal particles are no more there, like they have combined to form the large solid precipitate, right? जैसे methods of coagulation में मैंने आपको बताया, सबसे सिंपल तो यही रहता है, addition of electrolytes, ठीक है। एक मेथड मैंने आपको बताया, opposite charge electrolytes को आप combine कर दो, opposite charged colloids को combine कर दो, उससे भी coagulation हो जाता है। Another important one which you would want to understand is this electrophoresis, right? ये electrophoresis में कैसा है, यहाँ पर what they do is that they have the colloidal solution in a tube and you connect cathode and anode on either side, ठीक है। Now what will happen is that depending upon the charge of the colloidal particles, they will start moving towards the opposite charged electrodes. जैसे यहाँ पर for example negative colloidal particles हैं, they will start moving towards the positive charge plate which is anode, and यहाँ पर they will lose their charge and then coagulate, ठीक है। So this movement of colloidal particles under the electrical potential applied is called as electrophoresis. ये electrophoresis word ध्यान में रखना, ठीक है। And of course because of this when the particles they come closer to the opposite charge electrode, they lose their charge and then they get precipitated. ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ में एक और टर्म यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोओस्मोसिस क्या है, इसमें like what we do is instead of allowing the movement of colloidal particles, ठीक है, हम लोग कुछ यहाँ पर ऐसा एक मेम्ब्रेन लगा देंगे to prevent the movement of these colloidal particles, and then what we see is that the DM, the dispersion medium, it starts to move under the effect of electric field. That is called as electroosmosis. मतलब this is something which is used in purification of colloids, ठीक है। So ये एक बार purification में भी discuss करते हैं, but yes, this is one method of doing coagulation called electrophoresis. Other method is simple. You simply add electrolytes. अगर आपको positive charge colloid को coagulate करना है
तो opposite charged ions, negative charged ions would be used from the electrolyte and vice versa. And based on that, there is something called as coagulation value or flocculation value of electrolyte, which is that what will be the minimum concentration of an electrolyte that is required for coagulation of 1 liter of a colloidal solution. So how many millimoles of an electrolyte will be required per liter of the solution to coagulate it? That is what is called as a coagulation value or flocculation value of an electrolyte. Now, जिस इलेक्ट्रोलाइट की कोएगुलेशन वैल्यू कम है तो वी कैन से उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, राइट? कम क्वांटिटी में अगर यूज हो रहा है कोई इलेक्ट्रोलाइट टू कोएगुलेट अ सॉल्यूशन, अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, तो उसकी कोएगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगी, राइट? सो यू कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप हाउ इट इज इनवर्सली रिलेटेड. नाउ इफ वी हैव बंच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंपेयर विद, ठीक है, तो उसमें जनरली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कोएगुलेटिंग पावर वीक इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा ही रहती है, because of the fact that more ions are coming from the strong electrolyte as compared to weak electrolyte, right? However, amongst strong electrolyte अगर हमें comparison करना है तो उसमें charge on the ion is what comes of use. ठीक है, तो यहाँ पर notice करना, this is captured under this heading called as Hardy-Schulze rule. So for example, you have to coagulate a certain colloid, then उसके opposite charge ions जो रहेंगे of electrolyte, that play an important role, and greater the charge, ठीक है, greater will be the power to coagulate, lesser would be the coagulation value, lesser would be the quantity of electrolyte required to do that coagulation, right? तो यहाँ पर notice करना, let's say if you have a positive sol, positively charged electrolyte है, colloid है, and ये सारे electrolytes कंपेयर करने हैं कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर रहेगा, किसकी कोएगुलेटिंग पावर ज्यादा रहेगी, तो व्हाट आई हैव टू डू इज फोकस ऑन दी अनायन, बिकॉज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट को कोएगुलेट करने के लिए अनायन लगेगा. अब अनायन यहाँ पे मैं इन सबका ऑब्जर्व करूंगा तो आई विल सी दैट देयर चार्जेस आर -4, -3, -2 and -1 रेस्पेक्टिवली, तो द कोएगुलेटिंग पावर इज इन दिस मैनर ओनली, ठीक है, एंड द कोएगुलेशन वैल्यू विल बी इन द ऑपोजिट वे. ये समझ में आया हार्डी-शुल्ज रूल? Right, simple and straightforward. If you have say a negative colloid and you use these set of electrolytes only, तो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट को आप कोएगुलेट, नेगेटिव कोलॉइड को कोएगुलेट करने के लिए हमें कटायन पे फोकस करना पड़ेगा, राइट? सो अगेन नहीं, जस्ट प्रोटेक्टिव पावर अलग होती है. प्रोटेक्टिव पावर में इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए प्रोटेक्टिव पावर नहीं यूज किया जाता. इलेक्ट्रोलाइट्स तो कोएगुलेट करते हैं, तो उनके लिए कोएगुलेशन पावर या कोएगुलेशन वैल्यू डिस्कस करी जाती है, ठीक है. प्रोटेक्शन के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ, इसके जस्ट अगला ही है वो प्रोटेक्शन वाला पार्ट में बताता हूँ आपको, ठीक है. यहाँ पर आप नोटिस करना, अगर यही मेरा नेगेटिव कोलॉइड है और सेम सेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, बट दिस टाइम बिकॉज नेगेटिव कोलॉइड इज देयर, आई विल फोकस ऑन द कटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. सो यहाँ पे कटायन का मैं फोकस करूंगा तो नोटिस करूंगा चार्ज इस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, तो कोएगुलेटिंग पावर इस तरीके से इंक्रीज करेगी, कोएगुलेशन वैल्यू डिक्रीज करेगी. दिस इज व्हाट हार्डी-शुल्ज रूल इज, ठीक है, राइट? तो इसमें व्हेन यू कम अक्रॉस क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है कि आर्सेनिक सल्फाइड, अब इसमें तो क्वेश्चन में दे दिया कि आर्सेनिक सल्फाइड नेगेटिव सॉल्व रहता है, बट समटाइम्स दे डोंट गिव दैट, दे जस्ट विल गिव कि आर्सेनिक सल्फाइड को कोएगुलेट करना है, व्हिच ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट हैज अ बेस्ट कोएगुलेटिंग पावर या प्रेसिपिटेटिंग पावर. So the fact that you should know arsenic sulfide is a negative colloid becomes important. Then only you have to focus on the cation of the electrolytes and then compare किसका charge ज़्यादा है. That will be your answer for maximum coagulating power. ठीक है, तो ये कुछ questions रहेंगे, जैसे for example ये वाला question है, right? Which is the most effective in causing coagulation of ferric hydroxide solution. So ferric hydroxide में you understand that it is a positive sol, so I have to focus on the anions of these electrolytes and then give an answer. ठीक है, गोल्ड सॉल के बारे में आपको पता होना चाहिए. गोल्ड सॉल इज नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड, तो फिर अगेन इन इलेक्ट्रोलाइट्स में कटायंस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, आंसर देना पड़ेगा, ठीक है. तो दिस नॉलेज ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सॉल इज देयर, positive and negative, becomes crucial in answering which electrolyte is going to be more powerful, ठीक है.
ये समझ में आया आप लोगों को? Hardy-Schulze rule and the property of coagulation, what is coagulating power and what is coagulation value? इसमें किसी को कोई डाउट है? All right. ठीक है, अब नोटिस करना there is something called as gold number also. ठीक है so this is related to the protective action of lyophilic colloids. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से समझना, लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है, टिपिकली यहाँ पे गोल्ड सॉल का एग्जांपल लिया जाता है, ठीक है. लायोफोबिक कोलॉइड्स, दे आर रेडिली precipitated by small amount of electrolytes, ठीक है. However, these colloids can be protected using lyophilic colloids, ठीक है. Okay, Anirudh का डाउट आ रहा है, if two ions have the same charge, then which would coagulate more? ठीक है, सो उसमें what we will then say or talk about is a charge density. जिसका साइज छोटा होगा ना, that will have a more coagulating power. Okay, coming back, यहाँ पर गोल्ड नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल कि गोल्ड सॉल जो रहता है, टिपिकली मेटल सॉल लिया जाता है यहाँ पे, लायोफोबिक कोलॉइड, that is less stable and it is readily precipitated by a small amount of electrolytes. However, what we can do is we can protect this gold sol, we can protect this lyophobic colloid by pre-mixing certain lyophilic colloids and protect this colloid from undergoing precipitation. Okay, so for example, you have a gold sol, ठीक है. इस गोल्ड सॉल में अगर थोड़ा भी आपका इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड हो जाएंगे तो ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा. तो व्हाट वी विल डू इज वी विल प्रीमिक्स इट विद सम लायोफिलिक कोलॉइड्स लाइक जिलेटिन, स्टार्च, लाइक ये डिफरेंट एग्जांपल्स रहेंगे व्हिच यू कैन ऐड टू दिस गोल्ड सॉल, व्हिच कैन प्रिवेंट coagulation of this gold sol. Now how does that prevention happens? Because these lyophilic colloidal particles, they surround the lyophobic colloidal particle, ठीक है, they form a thin layer around it and prevent these electrolytes के ions from coagulating these gold के colloidal particles, ठीक है. So इसमें आप नोटिस करना, we define something called as gold number for these lyophilic colloids. How is that gold number defined? तो पहले उसका definition नोटिस करना, ठीक है. The definition is that number of milligrams of lyophilic colloid that will just prevent the precipitation, the change of color of the gold sol from red to blue. मैंने आपको बताया था कि finest gold sol red color के होते हैं, ठीक है. उनका साइज अगर आप बढ़ा देते हो गोल्ड के colloidal particles का तो वो ब्लू कलर हो जाता है. तो अगर मेरा गोल्ड सॉइल है, उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा तो उसका कलर रेड से ब्लू चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है. तो अगर गोल्ड सॉइल में मैं, ठीक है, 1 ml ऑफ 10% NaCl सोल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है. मैंने 10 ml का गोल्ड सॉइल लिया, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, मैंने 10 ml का गोल्ड सॉइल लिया और उसमें 1 ml 10% NaCl सोल्यूशन डाल दूंगा तो वो कलर रेड से ब्लू हो जाएगा. बट इफ आई प्रीमिक्स some lyophilic colloid, then this color change, this precipitation, this coagulation can be avoided. That is what we are discussing, that how much of lyophilic colloid can prevent that, and the number of milligrams of such lyophilic colloid that can prevent it is called as the gold number of that lyophilic colloid, ठीक है. तो यहाँ पर आप लोग नोटिस करना लाइक किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, राइट. सो यू हैव, जैसे मैंने बोला, यहाँ पर आपका 10 ml, ठीक है, 10 ml का गोल्ड सॉल रखा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल है आपका. नाउ इसमें हम 1 ml ऑफ 10% NaCl डाल देंगे अगर, ठीक है, तो ये रेड कलर से ब्लू कलर हो जाएगा, बिकॉज कोएगुलेशन होगा, पार्टिकल साइज बढ़ेगा एंड कोलॉइड का कलर चेंज हो जाएगा. बट अगर इसमें मैं कोई लायोफिलिक सॉल पहले से ऐड कर दूंगा, प्रीमिक्स कर दूंगा, तो इट कैन प्रिवेंट दैट कलर चेंज, ठीक है.
एंड कितना मिलीग्राम्स डलेगा, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी द गोल्ड नंबर. ठीक है. सो द मिनिमम मिलीग्राम्स ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड दैट एडेड कैन प्रिवेंट द कलर चेंज इज कॉल्ड द गोल्ड नंबर ऑफ दैट लायोफिलिक कोलॉइड. राइट. तो जितना कम क्वांटिटी में लगेगा उतना उसका प्रोटेक्टिव पावर रहेगा. ठीक है. समझ में आया व्हाट गोल्ड नंबर इज? ठीक है. ऑलराइट, देन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल रहते हैं ये बुकलेट के. राइट, ये बुकलेट के क्वेश्चंस जो मैंने निकाल के रखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोग देखोगे. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला था, गोल्ड नंबर ऑफ hemoglobin is 0.03 and 100 ml of gold soil will now require how much of hemoglobin so that it is not coagulated by 10 ml of 10% NaCl solution. तो अपनी डेफिनेशन के हिसाब से ये 10 ml था और ये 1 ml था, तो बेसिकली 10 टाइम्स कर दिया. ठीक है, एवरीथिंग को. तो जो गोल्ड नंबर था विच रिप्रेजेंटेड 0.03 ग्राम्स और मिलीग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन दैट वुड हैव प्रिवेंटेड दिस, तो उसको भी आप 10 टाइम्स कर दो. ठीक है, बिकॉज अपनी डेफिनेशन में सब चीज 10 से मल्टीप्लाई कर दी जा रही है. ठीक है, तो ये आपका गोल्ड नंबर था. एंड देन दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच टॉक्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलॉइड्स. ठीक है, लायोफिलिक के लिए तो क्या था, सिंपल मिक्सिंग कर दो, लायोफिलिक कोलॉइड्स बन जाते हैं. एंड देन दिस इन दिस लास्ट पार्ट you had this preparation of lyophobic colloids in which there were these chemical methods, there were these Berdeg-Arp का method and एक solvent exchange का भी था. मैं देख के बता देता हूँ आपको. ठीक है, तो ये chemical methods जो थे, like chemical methods and peptidization वाला जो part है, उसमें कैसा है, like you do certain reaction and उस reaction से colloidal particles generate होते हैं, and because of the presence of one of the common ions, these colloidal particles are present in a stable manner. ठीक है. देन ये जो प्रोसेस रहता है इसको पेप्टाइजेशन भी बोलते हैं. बेसिकली रिएक्शन होने पर व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट बनता है उसकी रिग्रेस शेकिंग करके स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस आयन है वो ऐड करा जाता है, ताकि लाइक it can act as a protective layer. Like you can study this example which highlights this chemical way of preparation called peptidization. Right. So peptidization is a process of converting a precipitate into a colloidal solution by shaking it with a dispersion medium in presence of a small amount of electrolyte called as peptizing agent. So let's say you have FeOH whole thrice का precipitate form करा. कैसे करा आपने? FeCl3 को है उसको पानी में डाल दिया, राइट, तो FeOH whole thrice का precipitate बना. ठीक है, अब इसकी आप रिग्रेस शेकिंग करोगे या फिर ऐसे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस दोगे तो ये कोलॉइडल डायमेंशंस में ब्रेक होगा, एंड देन दिस Fe3+ आयन जो आपने एक्सेस में डाला था दैट गेट्स अब्सॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ दीज कोलॉइडल साइज पार्टिकल्स ऑफ FeOH whole thrice, मेकिंग दिस अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH whole thrice. ठीक है, तो ये आपका पेप्टाइजेशन का तरीका हो गया. ठीक है, ये स्पेशल टेक्निक नहीं लगाओगे तो फिर तो लाइक सस्पेंशन बन जाएगा, FeOH whole thrice का प्रेसिपिटेट बन जाएगा. So you have to apply such special ways or methods to create these colloidal particles, colloidal solutions. तो ये chemical method था. Then एक ये physical method है जिससे typically आपके metal के salts बनाए जाते हैं, called as Berdeg-Arp method. Right? इसमें भी काफी simple technique रहती है. जिस metal का आपको salt बनाना है उसके electrodes आप लोगे and उन electrodes को आप लोग at a small distance place करोगे एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे ताकि आर्क जनरेट होगी. आर्क जनरेट होने से यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मेटल के वेपर्स बन जाएंगे. वो वेपर्स को आप फटाफट कूल करोगे बाय ensuring that the entire setup is immersed in an ice bath and like the temperature is quite cold, and then those gold के vapors they would start coagulating, and then you will add, इसमें भूलना नहीं है, you will add traces of electrolytes so as to prevent the gold subparticles from coagulating into the सस्पेंशन डोमेन. लाइक उनको उनका कोएगुलेशन होगा, उनकी सरफेस जनरेट होगी, एंड आपने जो ये NaCl डाला होगा ट्रेसेस में तो इसका क्लोराइड आयन विल गेट एब्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ दोस गोल्ड पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर फॉर्मिंग सस्पेंशंस. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये गोल्ड का सॉल्व भी जनरेट होता है. ठीक है, तो ये कुछ
मेथड्स रहते हैं, ठीक है। इनफैक्ट इसके आगे का भी थोड़ा सा है, लेट मी फिगर आउट कहाँ पर है वो। गिव मी अ मिनट, इन द मीन टाइम आपको कुछ डाउट होंगे तो पूछना। अभी तक जितना देखा उसमें समझ में आ रही है चीज़ें आपको? थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर मैंने एक आध चीज़ एक्स्ट्रा बता दी होगी, तो वो आप लोग नोट्स में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो उसमें से पिक एंड ड्रॉप कर लेना, लाइक जस्ट add up some things if there are not there in the notes that you have. And let me just quickly see, like ये प्योरिफिकेशन वाला पार्ट था, एंड आई होप आप लोग एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हो। दिस इज इम्पोर्टेंट, आप एनसीईआरटी से भी पढ़ो इस चैप्टर को, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना साथ में, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और है, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। As part of your notes, क्या क्या डाउट है यहाँ पर, एक एक करके देखते हैं। क्या था जश, गोल्ड नंबर में ए बी सी डी प्रोटेक्टिव कोलॉइड पावर वाई डोंट बी सप्लाई 10 for 10 ml of NaCl, कौन सा कह रहे हो, ये वाला? टू प्रिवेंट पॉसिबल कोएगुलेशन, क्वांटिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स, जिसका क्वांटिटी ज़्यादा लग रहा है उसका गोल्ड नंबर कम हो गया। हाँ, ये हेमोग्लोबिन वाला ना, अच्छा हेमोग्लोबिन वाले में क्या है, हाँ तो 10 times गोल्ड नंबर हुआ ना, लाइक 0.03 was that we will use for 10 ml of gold sol when 1 ml NaCl is to be added. बट अगर 100 ml गोल्ड सॉल में 10 ml NaCl ऐड करा जा रहा है तो हमें प्रोटेक्टिव कोलॉइड भी 10 टाइम्स लगाना पड़ेगा ना, तो इंस्टेड ऑफ 0.03 मिलीग्राम यू विल हैव 0.3 मिलीग्राम्स, ठीक है। देन क्या डाउट है वरुण आपका, ये बर्डिक आर्क मेथड में जो भी आपको मेटल का सॉल्व बनाना है, मान लो गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स यूज करनी है, सिल्वर का सॉल्व बनाना है तो सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स यूज करनी है, कॉपर का सॉल्व बनाना है तो कॉपर की इलेक्ट्रोड्स यूज करनी है, तो उन्हीं के मेटल के वेपर्स यहाँ पे फॉर्म होंगे ना, विच विल मेक दिस कोलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आया वरुण? ऑलराइट, देन ये एक सॉल्वेंट एक्सचेंज वाला मेथड भी था, ये भी आप देख लेना, इसमें ये टिपिकली सल्फर सॉल्व के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कैसा है दैट सल्फर को वाटर में मिला दोगे तो सॉल्व नहीं बनता डायरेक्टली, क्योंकि सल्फर और वाटर की कोई खास सॉल्युबिलिटी रहती नहीं है, तो व्हाट यू डू इज पहले आप सल्फर और अल्कोहल को मिक्स करते हो, ठीक है, तो उससे सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि सल्फर और अल्कोहल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप उसमें लाइक वाटर ऐड कर देते हो, ठीक है। तो व्हेन अ ट्रू सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद एक्सेस ऑफ अदर सॉल्वेंट which is in which the solute is insoluble and the solvent is miscible, a colloid is obtained. तो यहाँ पर ये ट्रू सोल्यूशन किसका था, सल्फर इन अल्कोहल का ट्रू सोल्यूशन था, एंड इसमें अदर सॉल्वेंट क्या है, वाटर को ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, जो सॉल्यूट था वो इनसॉल्युबल होता है इन वाटर, ठीक है, बट अल्कोहल और वाटर मिक्सेबल होता है, तो इससे क्या होगा, आपका सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। व्हेन सल्फर सॉल्ट इज
poured in alcohol, हाँ मतलब एक्चुअली इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है वो, इसके नीचे वो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखा हुआ है कि सल्फर इन अल्कोहल ये ट्रू सोल्यूशन है, इसको एक्सेस वाटर इसमें ऐड कर देंगे तो इस सल्फर का कोलाइड ऑब्टेन हो जाएगा. दिस इज अ सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, दिस इज लाइक अ फिजिकल मेथड, इसमें देयर इज नो केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग. ठीक है, आयोडीन का सॉल और सल्फर का सॉल ऐसे बनाया जाता है. तो ये तीन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ध्यान में रख लेना, एक केमिकल मेथड, एक ये इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन और एक ये सॉल्वेंट एक्सचेंज. ठीक है, बाकी purification of colloidal solutions, that is something which is done by this phenomena of electrodialysis. like बहुत सिंपल सा टेक्निक होता है. आपको जब कोलाइड्स अपन बनाते हैं तो कोलाइड्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स या आयंस नहीं रहने चाहिए, तो उनको रिमूव करने के लिए टेक्निक यूज करी जाती है. तो कोलाइड को एक बैग में भर देने का, वो बैग का जो मेम्ब्रेन होगा वो स्पेशल ऐसा मेम्ब्रेन होगा जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा, बट जो स्मॉलर साइज आयंस है उनको एस्केप करने देगा. तो ये बैग को अपन पानी में रखेंगे, पानी में क्या हो जाएगा, ये आयंस ऑटोमेटिकली बाहर माइग्रेट करने लगेंगे. एंड अगर पानी रनिंग है और पानी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो दैट रिमूवल ऑफ आयंस बिकम्स इवन फास्टर. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोडायलिसिस. ठीक है, तो ये सिंपल सा टेक्निक है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए. ठीक है, प्योरिफिकेशन में काम आता है. देन बाकी तो कोलॉइड्स और इनके एप्लीकेशंस हैं. अगेन ये एनसीईआरटी में जो एप्लीकेशंस हैं इनको ध्यान से पढ़ लेना. ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, जैसे देयर इज दिस आर्टिफिशियल रेन का एप्लीकेशन, दिस इज स्मोक प्रेसिपिटेटर, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, ये सब ध्यान से देख लेना. देन एंड में एक ये इमल्शंस के बारे में बात करी हुई है, विच इज ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल टाइप, दो इमल्शंस रहते हैं जो लिक्विड लिक्विड कोलॉइड बनता है, तो उसका एक छोटा सा पैराग्राफ है. ठीक है, बट मोस्टली ये एप्लीकेशन जरूर आई वुड रेकमेंड कि एक बार ध्यान से देख लेना. ठीक है, हाँ. सो अब डाउट्स मैं आप लोगों के इस चैप्टर के फ्राइडे को ले लेता हूँ. ठीक है, आज की क्लास में इसके डाउट्स नहीं कर पाया मैं, टाइम नहीं मिला हम लोगों को. तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डू एंड डिस्कस द डाउट्स फ्रॉम द बुकलेट एंड कंप्लीट दिस चैप्टर. ठीक है, हाँ. इसका बुकलेट सोल्यूशन आई डोंट थिंक सर्फेस केमिस्ट्री का कोई सोल्यूशन वगैरह अपलोडेड होगा कहीं पर भी. लाइक वो सब लाइक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसमें सोल्यूशन क्या है, जो है सो है, लाइक सिंपल नॉलेज बेस्ड ही है. तो आपको या तो नोट्स में मिलेंगे या बुकलेट में मिलेंगे या एनसीईआरटी में मिलेंगे. ठीक है, तो प्राइमरी उसी तरीके से रहेंगे. ठीक है, हाँ. तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री अब आपको एडीसीएच सर पढ़ाएंगे, तो फिर आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री कल उनके साथ डिस्कस करोगे. ऐसे ही आप लोग फ्राइडे को मेरी क्लास में सरफेस केमिस्ट्री के डाउट्स लेके आ जाओ फ्रॉम द बुकलेट, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलो, ऑल राइट गाइज. एंड ठीक है, थैंक यू, टेक केयर.